So now I'm going to discuss about methods of recording depreciation. In the books of account, there are two types of arrangements for recording depreciation on fixed assets. The first thing is that charging depreciation to asset account. Now the second thing is that creating provision for depreciation, or we can say accumulated depreciation account. So the next thing is that charging depreciation to asset account. Charging depreciation to asset account. According to this arrangement, depreciation is deducted from the depreciable cost of the asset, credited to the asset account, and charged or debited to profit and loss account. हम कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं? चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट. चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट. सो अकॉर्डिंग टू दिस अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट के हिसाब से depreciation is deducted from the depreciable cost of the asset credited to the asset account and charged or debited to profit and loss account. Now the next thing is that creating provision for depreciation account, or we can say accumulated depreciation account. This method is designed to accumulate the depreciation provided on a asset in a separate account, generally called provision for depreciation or accumulated depreciation. By such accumulation of depreciation, the asset account need to be distributed. Okay, so need to be distributed in any way, and it continues to be shown at its original cost over the successive years of its useful life. So we can explain more about these things and clarify these things based on some questions. So first of all, we should discuss one or two questions, then only we can clear out these figures. Okay, so let's start. So first question, question 1, that is, R Kanditkar had purchased a machinery for rupees 1 lakh on 1st October 2016, and the machine was purchased for rupees 60,000 by check on 1st April 2018. Depreciation is charged at the rate 10% per annum by the straight line method. So first of all, we will use or apply the straight line method. Okay, so next, accounts are closed every year on 31st March. You are required to pass necessary journal entries for the years ended 31st March 2017, 18 and 19, and show machinery count and machinery in the balance sheet. So the first thing is that when provision for depreciation account is not maintained, and the second thing is that when provision for depreciation account is maintained. There are two things we should consider. So let's start the solution. When provision for depreciation account is not maintained. Okay, the first condition is that when the provision for depreciation account is not maintained. So let's start with the machinery account. So as you know that the ledger account is look like this one. So on the left side is debit side and the right side is credit side, and the first thing is that we have to mention date, particulars, JF, amount that we can show with the rupees symbol. So next again date, particulars, JF, amount. So here you can see the rupees symbol. So first thing is that to bank account 1 lakh. 1st October 2016 to bank account 1 lakh.
So that amount we have taken from the question that is given. You can see here, you can see the machine purchased a machinery for rupees 1 lakh. Okay, 1st October 2016. So the cost price of machinery is 1 lakh, that we have mentioned here. To bank account 1 lakh. Clear? Now the next thing is depreciation. Okay, depreciation for this particular financial year. Okay, so this particular financial year depreciation is 5,000. Now how I get this 5,000, that you can see in the working notes. Okay, so I'm showing this one. So there is nothing to show. So okay, we can directly calculate. So here you can see the main costing amount is 1 lakh, right? Cost amount is 1 lakh, and the depreciation charges of depreciation is 10%. So first of all, 1 lakh into 10% means 10,000. Okay, if we calculate 1 lakh into 10% means 10 by 100, then we will get 10,000. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ये जो मशीन खरीदा गया है, दैट मशीन वी हैव परचेज्ड इन 1st October 2016. ओके, so from that 1st October 2016 to the 31st March 2017, how many months that we have to count? October, November, December, January, February, then March. Then here total 6 months. Okay, so we have calculated 10,000 for the whole year. That means for 12 months. For 12 months, that is 10,000, and we need to calculate for 6 months. That means half. So half means 5,000. So that is the reason here under depreciation account we have written 5,000. इज इट? सो इस साल का डेप्रिसिएशन हमें मिल गया 5,000, और इसी साल हमने ये जो मशीनरी ख़रीदा था उसका जो अमाउंट है वो है, कॉस्ट अमाउंट है 1 लाख. सो 1 लाख हमने डेबिट साइड में लिखा जो कि परचेज अमाउंट है, और डेप्रिसिएशन अमाउंट जो हमने कैलकुलेशन किया 5,000, वो हमने क्रेडिट साइड में लिखा. अब दोनों अमाउंट को कंपेयर करके हम बैलेंसिंग फिगर अगर फाइंड आउट करें तो हमें मिलेगा 95,000. इज इट? सो दैट वी हैव मेंशनड 31st March बाय बैलेंस सी डी. 31st March बाय बैलेंस सी डी. सो ये जो 2016 से लेके 2017 फाइनेंशियल ईयर था उसका हमने कैलकुलेशन कर लिया. अब हम नेक्स्ट 2017-18 में जाते हैं. सो जो भी हमारा बैलेंस सीडी में अमाउंट था 95,000, वो हम नेक्स्ट साल के पहले डेट में, दैट मीन्स ओपनिंग डेट, बिगिनिंग ऑफ द ईयर और बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2017, उसमें हमने ट्रांसफ़र कर दिया और हमने लिखा कि टू बैलेंस बीडी. जो हमारा बैलेंस सीडी था उसी को ही हमने बैलेंस बीडी बोल के लिखा, दैट इज़ 95,000. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ इस फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डेट क्या होगा? ऑब्वियसली 31st March 2018. सो उस डेट में हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन क्या होना चाहिए? एज क्वेश्चन पे गिवन था, ये जो डेप्रिसिएशन वाला कैलकुलेशन हम कर रहे हैं उसमें स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई करना है, और हमें पता है कि जो अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो हर वक्त
वक्त यानी कि हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहेगा। दैट मीन्स इससे पहले जो हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन किया था उसका अमाउंट कितना था? अमाउंट था 10,000। ओके, अमाउंट कितना था? 10,000। वो तो हम हमारा डेट के हिसाब से 6 मंथ था तो हमने हाफ अमाउंट लिया। इस बार तो ये पूरा साल रहा ना, 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 2018। तो इस बार हमें फुल लेना है। तो फुल अमाउंट कितने होंगे? 10,000। दैट इज द रीजन दे हैव रिटन वी हैव रिटन अंडर दिस डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000। ओके, सो अब हम बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करेंगे, और जैसे ही हम बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करते हैं तो हमें अमाउंट मिल जाता है 85,000। ऑब्वियसली 95,000 माइनस 95,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 85,000। सो 85,000 हो गया हमारा बैलेंस सी डी, जो कि हम नेक्स्ट साल में बैलेंस बी डी बोल के लिखेंगे। दैट इज 85,000। दैट इज व्हाट? 85,000। नाउ नेक्स्ट काम क्या होता है? जैसे ही हमने बैलेंस बी डी लिख लिया तो नेक्स्ट काम हमारा होता है कि डेप्रिसिएशन अकाउंट by depreciation account. Now, match 1, they got 10,000. Okay, and match 2, 6,000. सो डेप्रिसिएशन में हमें पहला जो यहाँ पर पहले जो मिला था वो हमें क्या मिला था? 6,000। यहाँ जो भी अमाउंट आ रहा है ये सब अमाउंट को अगर हमें देखना है तो पहले हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट कंप्लीट करना है, तभी जाके इन सारे अमाउंट के बारे में हम अच्छे से समझ पाएंगे। सो यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर है ना? तो यहाँ पर जो बैलेंस सी डी था वही यहाँ पर बैलेंस बी डी हो गया। अब यहाँ जो मैच 1 और मैच 2 लिखा है ये मशीनरी 1 मशीनरी 2 ये सब है। ओके, सो यहाँ 85,000 तक रखते हैं और क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक मशीन खरीदा गया था जो कि 1 लाख रुपए में, और एक और मशीन खरीदा गया था जो कि 60,000 रुपीज़ में खरीदा गया। ओके, सो अब दोनों ही हमें कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, और ये वाला जो 60,000 का मशीन है ये खरीदा गया था 1 अप्रैल 2018। दैट मीन्स अभी हमें ये रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। सो 1 मार्च 2018 जो यहाँ पर हमने छोड़ा था कि बैलेंस बी डी 85,000 होगा। अब एक और मशीन हमने खरीदा ना 1 अप्रैल 2018 में, तो उसको भी हम मेंशन करेंगे। तो बैंक अकाउंट मशीनरी 2 और 60,000, तो हमने परचेज कर लिया एक और मशीन और वो हमने दिखा भी दिया। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करेंगे पूरे साल का। ये तो पहला वाला मशीन है और पहले वाले मशीन का स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ हो रहा है और हमेशा सेम अमाउंट ही रहेगा डेप्रिसिएशन का, तो वो होगा 10,000। ओके, पहले वाले के लिए। अब दूसरा वाला जो है मशीन अकाउंट, तो इसके ऊपर भी 10% चार्ज लगाए जाएंगे। ये भी 1 अप्रैल से लेके पूरा 31 मार्च तक था, तो पूरे साल का इसके ऊपर चार्जेस लगेंगे जो कि 10% है, और 60,000 का 10% कितना होता है? 6,000। सो पहले वाले के लिए हमारा हो गया 10,000 और दूसरे वाले के लिए हो गया 6,000। दोनों नजर आए? सो डेप्रिसिएशन अकाउंट में दोनों को प्लस कर देंगे, तो प्लस करके हमें 16,000 मिलते हैं, वो हम टोटल अमाउंट में लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमने डेप्रिसिएशन काउंट कर लिया, और लेफ़्ट साइड में हमने नए वाले मेडिसिन को ख़रीदना भी ख़त्म कर लिया। सॉरी, नए वाले जो मशीनरी है उसको हमने 60,000 से ख़रीदा, वो भी हमने ख़त्म कर लिया।
और यह डेप्रिसिएशन भी हमने कैलकुलेशन कर लिया। तो अब हम देखेंगे कि बैलेंसिंग फिगर कितना है। ओके, सो बैलेंसिंग फिगर ऑब्वियसली यहाँ पर 16,000 है और यहाँ पर 85 प्लस 60। सो 85 प्लस 60 करेंगे हम। सो हमें जो भी वैल्यू मिल रहा होगा उससे हम 16,000 को माइनस करेंगे। सो 85 प्लस 60 दैट इज़ 1,45,000 राइट। सो उससे अगर हम 16,000 माइनस करते हैं तो हमें कितने मिलने वाले हैं। सो यहाँ भी जो भी हमें टोटल अमाउंट मिले ना, तो उससे हमें मशीनरी 1 का भी ढूंढ के निकालना है और मशीनरी 2 का भी बैलेंस ढूंढ के निकालना है। तो उस हिसाब से हम बाय बैलेंस सीडी करेंगे। सो अभी के लिए ये वैल्यूज़ देख के रखो, और ये आए कैसे है वो तो मैंने अभी बोला ये वाला, और ये कैसे आए वो हम नीचे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब एक और अकाउंट करेंगे। देखो जैसे मैंने 1,45,000 टोटल बोला था, दोनों ही साइड में 1,45,000 टोटल आ गया। अब जैसे 1,45,000 से तुम 16,000 माइनस करते हो तो तुम्हें 1,20,000 मिल जाएंगे। सो 1,20,000 तुम्हें कैसे मिले वो तो हमने यहाँ पर भी डिस्कशन किए। सो नेक्स्ट है कि ये जो सेपरेशन हुआ है 1,20,000 का मशीनरी 1 और मशीनरी 2 में, वो हम देखेंगे कि कैसे हुआ। देखो सिंपल सी बात है कि हमारा जो ये मशीनरी 1 था, ठीक है, मशीनरी 1 ये यहाँ पर बैलेंस बीडी कितना था 85,000। उसके बाद इस पूरे साल में हमने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया 10,000। सो 85,000 से 10,000 को अगर हम माइनस करते हैं तो कितना रहने वाला है 75,000 ऑब्वियसली। सो इस वजह से मशीनरी 1 75,000 हो गया। अब एक और चीज़ देख लेते हैं कि सेम उसी तरीके से मशीनरी 2 हमने कितने में ख़रीदा था 60,000, और उसी साल में इसका डेप्रिसिएशन कितना था 6,000। सो 60,000 से अगर 6,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास रहेगा कितना 54,000। तो उस हिसाब से हमने बैलेंस सीडी भी निकाल लिया। अब अगर 75,000 प्लस 54 करोगे तो तुम्हें ऑब्वियसली 1,29,000 मिलने वाले हैं। तो इसी तरह हमने ये मशीनरी अकाउंट ख़त्म कर लिया। अब हम डेप्रिसिएशन अकाउंट करेंगे। सो फॉर दैट डेप्रिसिएशन अकाउंट यू हैव टू मेक अगेन लेजर अकाउंट। That ledger account is same, left side is debit and right side is credit, then date particulars JF amount, date particulars JF amount। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम हमेशा डेप्रिसिएशन को ही मेंशन करेंगे, जो कि फर्स्ट मशीनरी के लिए हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था वो भी 6 मंथ के लिए जो 5,000 है, वो वहाँ पर क्रेडिट हुआ था तो यहाँ पर हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। सो इसी अमाउंट को ही हम प्रॉफिट एंड लॉस में भेज देंगे साल के लास्ट में। सो डेट हमेशा लास्ट वाला ही रहेगा, ठीक है, 31 मार्च 2017। यहाँ पर भी 31 मार्च 2017। तो इस 5,000 अमाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो जैसे ही ये वाला हम लिख लेते हैं तो हमें ये वाला लाइन क्लोज कर देना है, ठीक है। या 5,000 के नीचे तुम देख सकते हो एक एक लाइन बना के इसे क्लोज कर दिया गया। अब नेक्स्ट ईयर में चले जाएंगे, दैट मीन्स 31 मार्च 2018। सो अगेन वी हैव चार्ज डेप्रिसिएशन। सो इस बार जो सेकंड मशीन पे हमने फर्स्ट मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज लगाया वो पूरे साल का लगाया था। सो हमें मिल गया 10,000। सो नेक्स्ट 31 मार्च 2018 उसी 10,000 अमाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट में भेज देंगे। सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट टू मशीनरी अकाउंट जो हमने नेक्स्ट साल में डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, फर्स्ट मशीन के लिए 10,000 राइट, और सेकेंड मशीन के लिए 6,000। सो 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 16,000। सो टोटल डेप्रिसिएशन हमने थर्ड ईयर में चार्ज किया था 16,000, और उसी को ही हम प्रॉफिट एंड लॉस में भेज देंगे 16,000 बोल के, ठीक है।
So next we will discuss about when provision for depreciation account is maintained. जब depreciation account maintain किया जाएगा तब एंट्रीज कैसे रहेंगे। सो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लेंथी हो चुका है। सो पहला कंडीशन तो हमने डिस्कस कर लिया, सो दूसरा कंडीशन हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।